वेलकम टू ऑल। आई एम डॉक्टर ममता चौधरी। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ ऑफ ग्रेप्स या अंगूर में चूर्निल आसिता रोग। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि ग्रेप्स की पत्तियों पर जो है आपको वाइट कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि पाउडरी फॉर्म में है, इसीलिए इसको पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ ऑफ ग्रेप्स कहते हैं। Powdery mildew is an important disease of grapes worldwide. The disease generally is considered less economically important than black rot or downy mildew. Unlike black rot and downy mildew, the powdery mildew fungus does not require free water on the plant tissue surface to infect. Powdery mildew can result in reduced vine growth, yield, fruit quality, and winter hardiness. Varieties of Vitis vinifera and its hybrids generally are much more susceptible than American varieties. History. The focus of this research is the invasion history and population structure of the grape powdery mildew fungus Erysiphe nicator, formerly known as Uncinula nicator, an obligate parasite of Vitis species that was introduced into Europe and eventually all other wine producing regions of the world. Historical records support the hypothesis that the source of the introduction is Eastern North America. Powdery mildew was described on grapes in North America in 1834, prior to its discovery in Europe in 1845. Eastern North America is the center of origin for many wild species of vitis that have relatively high levels of resistance to many diseases and pests of grapevines, including powdery mildew. After its introduction to Europe, grape powdery mildew was observed throughout all wine producing regions of the world, including California in 1859 and Australia in 1866. Erysiphe nicator most likely dispersed long distances by the movement of grapevines, which were frequently traded between continents in the mid 1800 and later. The occurrence of powdery mildew disease are found Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Haryana, etc. Systematic position: Eukaryota, kingdom fungi, phylum Mycota, class Leotimycetes, order Erysipelas, family Erysipecae, genus Uncinula, species Uncinula nicator. The symptoms of powdery mildew are malformation and discoloration of affected leaves, discoloration of stem to dark brown, floral infection results in shading of flowers and poor fruit set, early berry infection results in shading of affected berries, powdery growth is visible on older berries and the infection results in the cracking of skin of the berries. अगर पाउडरी मिल्ड्यू के रोग लक्षण की बात करें तो सबसे पहले जो पत्तियां प्रभावित होती हैं और इनका जो है विकृति आने लगती है, मालफॉर्मेशन यानी विकृति आने लगती है, डिस्कलरेशन यानी इनका कलर हल्का होने लगता है पत्तियों का, और इसके साथ साथ तने का भी कलर है चेंज हो जाता है और डार्क ब्राउन में बदल जाता है। फ्लावर्स में इन्फेक्शन होने पर फ्लावर्स झड़ जाते हैं और जो फ्रूट सेटिंग होती है अंगूर की वो भी घट जाती है, पुअर हो जाती है। और अगर बेरीज़ में या अंगूरों में जल्दी इन्फेक्शन होता है तो अफेक्टेड बेरीज़ जो हैं वो झड़ जाती हैं। बेरी इन्फेक्शन जल्दी होने पर जो अफेक्टेड बेरीज़ हैं वो झड़ जाती हैं, और जो पाउडरी मिल्ड्यू
की जो ग्रोथ है वो ओल्डर बेरीज में क्लियर दिखाई देती है, और इन्फेक्शन बढ़ने के कारण बेरीज की जो स्किन है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, यानी बेरीज जो है वो फटी हुई जैसी दिखाई देती हैं। पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होती है कॉनिडिया के थ्रू, इसलिए इसको एयरबॉर्न डिजीज़ भी कहते हैं। थ्रू डोर्मेंट माइसीलियम एंड कॉनिडिया प्रेजेंट इन द इन्फेक्टेड शूट्स एंड बड्स। तो इसमें आप सिम्टम देख रहे हो, जो लीव्स हैं उनके ऊपर वाइट पाउडरी अपीयरेंस दिखाई दे रही है। पैथोजन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लिस्टोथीशिया जो होते हैं इसके, उनमें कई सारे एस्कस यानी एसाई पाए जाते हैं और अपेंडेजेस भी होते हैं इन पे। क्लिस्टोथीशिया का जो निर्माण है, जो कि एक फ्रूटिंग बॉडी है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, और फर्टिलाइजेशन में एस्कोगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके एग से एंथिडिया का फ्यूज़न होता है जिससे जायगोट बनता है। क्लिस्टोथीशिया जो होते हैं वो लेट फरवरी तक काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, और क्लिस्टोथीशिया के अंदर एस्कस पाए जाते हैं कई सारे, और प्रत्येक एस्कस में कई एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं, जो कि यूजुअली संख्या में 8 होते हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो हवा के द्वारा भी फैल सकते हैं और ससेप्टिबल ऑर्गन्स पे पहुंच के प्लांट के इन्फेक्शन को और बढ़ा सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉनिडिया के थ्रू होता है, जो कि हवा के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा फैलते हैं और डिजीज़ की सीवियरिटी को बढ़ाते हैं। क्लिस्टोथीशिया का आपको ही पूरा दिखाई दे रहा है। जो क्लिस्टोथीशिया क्या है, एक क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी है, और इसमें आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो एस्कोस्पोर्स हैं। फेवरेबल कंडीशंस जो हैं इस डिज़ीज़ के लिए, या जो कॉनिडिया हैं उनके जर्मिनेट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 10 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। बट टेम्परेचर फ्रॉम 25 to 28 डिग्री सेल्सियस, लो but not high atmospheric relative humidity, are necessary for mycelium growth and conidial production. Disease cycle. Powdery mildew is a polycyclic disease, one which produces a secondary inoculum that initially infects the leaf surface with primary inoculum, which is conidia from mycelium, or secondary inoculum, which is a overwintering structure called a क्लिस्टोथीशियम। तो पाउडरी मिल्ड्यू में जो प्राइमरी इनोकुलम होता है वो होता है कॉनिडिया, और जो सेकेंडरी इनोकुलम होता है वो क्लिस्टोथीशियम होते हैं। व्हेन द डिजीज़ बिगिंस टू डेवलप इट लुक्स लाइक ए वाइट पाउडरी सब्सटेंस। तो जैसे डिजीज़ शुरू होती है वो पत्ती की सरफेस पर सफ़ेद पाउडर नुमा स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। द प्राइमरी इनोकुलम process begins with an ascogonium female and anthidium male joining to produce an offspring. This offspring, a young Clistothecium, is used to infect the host immediately or overwinter on the host to infect when the timing is right, typically in spring. To infect, it produces a conidiophore that then bears conidia. These conidia moves along to a susceptible surface to germinate. Once these spores or conidia germinate, they produce a structure called a hostoria, capable of sucking nutrients from the plant cells directly under the epidermis of the leaf.
तो माइसीलियम जो है वो कॉनिडियोफोर उत्पन्न करता है, कॉनिडियोफोर से कॉनिडिया उत्पन्न होते हैं, और ये जो कॉनिडिया हैं ये हॉस्टोरिया के द्वारा ये जर्मिनेट होते हैं जर्म ट्यूब के द्वारा, और इनसे जो ये स्पेशल स्ट्रक्चर निकलता है जिसे कहते हैं हॉस्टोरिया, उसके थ्रू ये होस्ट प्लांट सेल से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करता है। पाउडरी मिल्ड्यू की ये पूरी लाइफ साइकिल है। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ पे अगर हम सिम्टम्स के रूप में दिखाई देंगे तो हमें अगर ब्लैक स्ट्रक्चर कुछ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो क्लिस्टोथेशियम का ग्रुप है। और क्लिस्टोथेशिया जो है लीव्स पे, शूट्स पे, बेरीज पे लेट समर में दिखाई देते हैं। फिर क्लिस्टोथेशिया से बनेंगे एस्कोस्पोर्स, और ये एस्कोस्पोर्स जो रिलीज होते हैं और हेल्दी टिश्यू को इन्फेक्ट करते हैं। माइसीलियम जो है वो कॉनिडिया का निर्माण करता है, और कॉनिडिया जो है वो प्राइमरी इनोक्यूलर के रूप में काम करते हैं और इन्फेक्शन प्लांट में उत्पन्न करते हैं। डिजीज़ मैनेजमेंट करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं उसमें सबसे पहले है वेटेबल सल्फर 0.25% या कैराथिन 0.01% का स्प्रे किया जाए डिजीज़ प्लांट्स पे, तो डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो प्लांटिंग साइट है वो थोड़ी खुली हुई हो ताकि जो डिजीज़ की सीवियरिटी वो कम हो और डायरेक्ट सनलाइट आए। प्लांट्स रो in the direction of the prevailing wind in order to promote good air circulation and faster drying of foliage and fruit. जहाँ प्लांट्स की जो बेरीज हैं या ग्रेप्स हैं उनकी जो प्लांट रोज हैं वो इस तरह से होनी चाहिए अरेंज कि जहाँ पर एयर सर्कुलेशन अच्छा हो और फॉलिएज और फ्रूट्स भी हैं वो जल्दी से ड्राई हो। इसके अलावा वाइन्स को टाइम टू टाइम प्रोनिंग करने से भी डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। Varieties differ greatly in their susceptibility to powdery mildew. Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chancellor, Chardonnay, Chilois, Merlot, Pinot Blanc, Pinot Noir, Riesling Rosette, Rogian, Sauvignon Blanc, Seyval, Vidal 256, and Vignoles are all highly susceptible varieties. On susceptible varieties, control is based on the use of proper timed application of effective fungicides. Early season control of primary infection caused by ascospores must be emphasized. तो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ उगाई जाएं, और जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ के लिए जो ससेप्टिबल वैरायटीज़ हैं वो उन सभी वैरायटीज़ पर अगर हम इफ़ेक्टिव फंजीसाइड्स का यूज़ करते हैं यानी कवकनाशी का यूज़ करते हैं तो डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से डिजीज़ को फंजीसाइड्स के थ्रू, रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो फंगस है वो लीव्स, शूट, बेरीज इन सब पर पाती है और कॉनिडिया का निर्माण करती है। तो कॉनिडिया जो है वो प्राइमरी इनोकुलम के रूप में काम करते हैं और हेल्दी टिश्यूज़ को या हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। और कॉनिडिया जो है वो जर्मिनेट होंगे जर्म ट्यूब के द्वारा जिससे वो माइसीलियम का निर्माण करेंगे। माइसीलियम जो है वो होस्टोरिया उत्पन्न करेगा
और उस होस्ट एरिया के थ्रू ये होस्ट प्लांट से अपना फूड अब्जॉर्व करते हैं। तो ये जो डिजीज साइकिल है पाउडरी मिल्ड्यू की, वो शो करती है कि इसमें दो तरह के इनोकुलम होते हैं पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स में। प्राइमरी इनोकुलम जो होगा वो क्या होगा, कॉनिडिया, यानी जो फर्स्ट इन्फेक्शन होगा प्लांट को वो कॉनिडिया के थ्रू ही होगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होगा या दोबारा जो इन्फेक्शन होगा उसमें सेकेंडरी इनोकुलम के रूप में काम कौन करते हैं, क्लिस्टोथीशिया। और क्लिस्टोथीशिया क्या है, एक फ्रूटिंग बॉडी है जो कि पूरी तरह क्लोज्ड होती है, बंद होती है। और क्लिस्टोथीशिया जो बनती है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के कारण बनती है। क्लिस्टोथीशिया में एस्कोस्पोर्स होंगे, ये एस्कोस्पोर जर्मिनेट होके नया माइसीलियम बनाते हैं और इन्फेक्ट करते हैं हेल्दी प्लांट्स को। So this is all about powdery mildew disease of grapes.